Students, today we'll discuss topic forms of market structure. Okay, on the basis of competition, there are various types of market structure forms which are as follows: perfect competition, monopoly, monopolistic, monopsony, duopoly, and oligopoly. Right now, in this perfect competition and monopoly, these are both are the extreme points. Right. Perfect and monopoly. Right? These are the extremes points. So we all discuss these markets one by one. So first one is your perfect competition. Now on the basis of characteristics, features, we come to know whether the market or competition is perfect, monopoly, monopolistic, or which type of market is. So here are the features of perfect competition. Number one, large number of buyers and sellers. इट मीन्स कि एक रीजन में या पूरी मार्केट में बहुत सारे बायर्स भी हैं और बहुत सारे सेलर्स भी हैं और वो इतने ज़्यादा लार्ज हैं कि अगर एक इंडिविजुअल बायर से या एक इंडिविजुअल सेलर से प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ सकते. दैट इज नो इंडिविजुअल वेदर बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. राइट हियर in for buyer the demand is so small in comparison to total demand that he cannot influence the price. Similarly, a single seller whose supply is so small in comparison to total supply of the market that on individual basis increase or decrease in the supply will not influence the price of the product. That's why the sellers are price takers. Right? The price is decided by the demand and supply forces. So we have already studied price equilibrium, that where demand curve and supply curve intersects each other, that is called price equilibrium. Right? So in perfect competition, demand and supply forces will help to target the price, and that price that has been achieved, on that price your seller will sell the product. Right? That's why the sellers are price takers. Okay. Number two is free entry and exit of the firms. Now here it means that if the firms are earning excess profit, so other firms will attract towards it. Now if they will attract it towards that industry, they're going to enter into that business. So there's firms are earning excess profit, new firms will be attracted, that is free entry and exit of the firms. Then there's homogeneous product. Now homogeneous means the firms which of a particular industry are manufacturing same type of products with same quality, same features. Right? So यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो products firms manufacture कर रहे हैं, they are perfect substitutes. मतलब मान लीजिए A, B, C, D, E, F कई सारी फर्म्स हैं. ये सारी फर्म्स क्या हैं? एक ही जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. अगर A अपना प्राइस इंक्रीज करेगा तो लोग क्या करेंगे? A को छोड़ देंगे, बाकी किसी से भी फर्म से वो गुड्स खरीद लेंगे. राइट? दैट मींस नो सेलर हैज इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी. ध्यान रखिए दो चीजें. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनाइट बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एंड नो सेलर्स हैज इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी. ए अपने आप बेसिस पे तय नहीं कर सकता कि हम प्राइस कम करें या प्राइस बढ़ाएंगे. गेटिंग इट? नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस. मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि हमें किस सेलर से खरीदना है या कौन से बायर को हमें सेल आउट करना है. यहाँ ना कोई पर्टिकुलर सेलर है, ना कोई पर्टिकुलर बायर है. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स. यहाँ पे क्लियर है, चाहे कोई भी फर्म होगी, हमारा मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यहाँ पे एक चीज आपको बता दे रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ध्यान रखिएगा दो कंडीशंस होती हैं. अभी आगे हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे. क्या कंडीशंस होती हैं? MR इक्वल्स टू MC, और सेकेंड कंडीशन क्या होती है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. ओके. तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस आर टू. नंबर वन, MR इक्वल्स टू MC and MC cuts MR from below. Okay. Then there is perfect mobility of goods and factors. Now goods का मतलब ये है कि goods हम उन places में जाके sell off हो
जहां पे वो हाईएस्ट से हाईएस्ट दाम पे सेल आउट हो सकते हो. दैट मींस गुड्स दैट कैन फेच हाईएस्ट प्राइस. सिमिलरली फैक्टर्स मोबिलिटी from low paid to high paid इंडस्ट्री को मूवमेंट कर सके. That is means your perfect mobility, right? Next is perfect knowledge of market conditions. मतलब जो भी बायर है या सेलर है उसको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है. He is very rational, right? Next is no transportation cost. यानी भी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब सेम क्वालिटी सेम फीचर्स का बना रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग भी हमने सेम एज्यूम करी. तो दैट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एंड सिमिलरली देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. मतलब एडवर्टाइजिंग में कोई खर्चा नहीं हो रहा है, पैकेजिंग में कोई खर्चा नहीं हो, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है. क्लियर? These all conditions are prevail, then they are called perfect competition, right? Now remember one thing, you have learned number 1 large number of buyers and sellers, number 2 free entry and exit of firms, and number 3 homogeneous product. अगर सिर्फ ये 3 फीचर्स हैं तो ये बात कर रहे हैं प्योर कंपटीशन की. ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ शुरुआत के 3 फीचर्स प्योर कंपटीशन के हैं. उसके बाद के जब फीचर्स एड ऑन किए जाते हैं तो कहलाता है वो परफेक्ट कंपटीशन, राइट? नाउ इन परफेक्ट कंपटीशन वी हैव टू फाइंड आउट द फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन. यानी कि प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन चाहिए हमें. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा या प्राइस आउटपुट डिटरमिन हम कैसे करेंगे शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में. नाउ price output equilibrium of firm that is in perfect competition in short run. हम बात कर रहे हैं short run में. तो short run में कोई भी फर्म होगी उसको 3 कंडीशंस बियर करनी होती हैं. पहला होता है abnormal profit, दूसरा है लॉस और तीसरा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. सो लेट्स डिस्कस हियर. फर्स्ट इज abnormal profit. अब आपको याद हो अभी हम लोगों ने बात की थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की 2 कंडीशंस थी, MR equals to MC and MC cuts MR from below. Now if you observe the graph, ये आपका जो प्राइस लाइन है that is your AR equals to MR equals to demand. यानी ये परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि AR, MR, डिमांड और प्राइस सब बराबर होते हैं. क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में अक्सर आता है कि क्यों जो आपका AR, MR, डिमांड प्राइस इज हॉरिजॉन्टल टू X axis बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट? So we have already discussed that point earlier. So in perfect condition, AR equals to MR equals to demand equals to price, which is parallel to x-axis quantity. Okay. Now, if you observe point E, E is your equilibrium point, right? अब इसको ऑब्जर्व करिएगा तो ये आपका AR कर्व है, ये आपका MC कर्व है. तो आप यहां देखिए MR इक्वल्स टू MC हमारा यहाँ पे और MC का MR फ्रॉम बिलो, यानी E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. यानी यहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट है. अब हमें ये देखना है कि फर्म किस कंडीशन में, एबनॉर्मल प्रॉफिट में है, लॉस में या नॉर्मल प्रॉफिट में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्म किस कंडीशन में है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, लॉस सफर कर रही है, ये हम एवरेज कॉस्ट कर्व को इंट्रोड्यूस करके एनालाइज करते हैं. देन वी हैव इंट्रोड्यूस एवरेज कॉस्ट कर्व. अब आप देखिए, we know that profit is TR minus TC, total revenue minus total cost. Therefore average profit is AR minus AC. Average profit equals to average revenue minus average cost. अब AR पॉइंट क्या था आपका, E जो आपका कर्व है किस पे है, AR पे है, तो EQ is your average revenue. Then average cost पे कितना हमारा पॉइंट आ रहा है, average cost देखिए हमारा T किस पे है, हमारा cost पे, तो TQ is your average cost, right? So EQ minus TQ, AR ज्यादा है, AC कम है आपका, इट मींस फर्म को एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, तो EQ minus TQ means ET. तो ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट. अब इसी को रेक्टेंगुलर बेस पे करेंगे तो टोटल प्रॉफिट पाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? तो वी नो दैट टोटल प्रॉफिट इज TR minus TC. तो टोटल रेवेन्यू क्या है हमारा, दिस EQ, ये हमारा लाइन है हमारी EQ into OQ. तो it becomes EPOQ. ये पूरा एरिया आ गया. This is your total revenue. Similarly, TQ into OQ, it becomes STOQ. ये हमारा आ गया total cost का. So this minus this region
minus this reason will be given your PEST. So TR क्या है? EQ into OQ, EP OQ, right? TC, TQ into OQ, TS OQ. Now this therefore profit is EP OQ minus TS OQ. Okay, so it becomes PEST, right? So it will become PETS. This will be the region PETS, right? तो total revenue minus total cost, this gives you total profit. यही हमारा क्वेश्चन होगा abnormal profit का. Clear? और दूसरा let into bracket निकाल सकते हैं ET into ST, PETS. Okay, this also you can write down here PETS. Okay, so that is your condition of abnormal profit. यहाँ ध्यान रखिएगा जो AC कर्व है वो AR के नीचे है, ठीक है? AC is your below AR. Okay, नेक्स्ट में आइए लॉस कंडीशन. यहां पे भी सेम हो रहेगा हमारा AR इक्वल्स टू MI इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है? ये हमारे इक्विलिब्रियम में सेम, राइट? अब यहां पे क्या हुआ? AC जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो अबव AR है, तो E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, AC इज योर अबव AR. तो हम क्या करें? हम E से T तक पॉइंट हम लाइन एक्सटेंड करेंगे, राइट? जब एक्सटेंड करें तो हमें T पॉइंट मिलेगा. तो अगेन सेम थिंग विल डू इट. AC कितना हो जाएगा? TQ इज योर एवरेज कॉस्ट, AR इज योर EQ. अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा कौन सा? एवरेज रेवेन्यू का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन हमारा ये हमारा एवरेज कॉस्ट का है. इसका मतलब कंपेयर करिएगा तो AC ज्यादा AR कम है, राइट? इसका मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम है, यानी लॉस हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखा? एवरेज लॉस विल बी TQ minus EQ equals to TE. TQ minus EQ equals to TE. Now this is your average loss. यही हम टोटलिटी पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल लॉस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू हो जाएगा. टोटल कॉस्ट क्या निकलेगा हमारा? अगेन TQ into OQ, तो क्या निकलेगा? TS OQ निकल आएगा माइनस EQ into OQ, EP OQ निकल आएगा, राइट? तो ये क्या है हमारा पूरा टोटल लॉस कितना आ गया हमारा? STEP. STEP इज योर टोटल लॉस, ठीक है? और इसी को आप कह सकते हैं ET into EP से भी आप कर सकते हैं, राइट? ET into EP, that is length into breadth. It also become STEP. Clear? Okay. So in short term now considers normal profit. अब normal profit ध्यान रखिएगा. Again the same things. AR equals to MI equals to D equals to price. E is equilibrium. अब normal profit हमेशा एक ही कंडीशन होगी. AC, AR, MR, MC आपके सब बराबर होंगे. Average cost equals to average revenue equals to marginal rate equals to marginal cost. So here will the firm will always earn normal profit. Is this clear? Now in long run also firm will always earn normal profit. ये ध्यान रखिएगा, long run में हमेशा normal profit firm earn करेगी. Is this clear? So again the same thing. ER equals to MI equals to D equals to price. E is your equilibrium and at E point your all AC, AR, MR और MC आपके सब बराबर है. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी आपने जितने भी शॉर्ट टर्म में ग्राफ देखे वहां पे जो कर्व्स देखे वो काफी स्टीप थे, यानी MR MC का आपने काफी स्टीप थे. लेकिन जब आपने यहाँ पे देखा तो दैट इज वेरी फ्लैटेंड. तो इफ यू कंपेयर इट तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत स्टीप कर्व मिलेंगे लेकिन लॉन्ग रन में आपको फ्लैटेंड मिलेंगे. क्लियर? तो यही डिफरेंस रहेगा कर्व में. कर्व बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस ध्यान रखिएगा लॉन्ग रन में आपका थोड़े कर्व्स फ्लैटेंड रहेंगे और शॉर्ट रन में थोड़े कर्व आपके स्टीप रहेंगे. ओके, कर्व्स दोनों सेम ही बनेंगे. शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट का बनेगा, लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट का ही बनेगा. सिर्फ क्या होगा? थोड़े से फ्लैटेंड बनेंगे क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है. कंडीशन सेम रहेगी. AC, AR equals to MR equals to MC, राइट? So यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंप्लीशन आपका फिनिश होता है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, तीनों ग्राफ की प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है. आपके पास जो क्वेश्चन आएगा मार्केट क्या होता है, मार्केट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, राइट? तो मार्केट हम डिस्कस कर चुके थे, मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया था. मार्केट फॉर्मेट जब कहेंगे तो हमें वो पांचों तरीके कंपटीशंस देने पड़ेंगे जो अभी हम लोगों ने बात की थी, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोसोनी एंड ऑल दैट. तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन आपका यहाँ पे खत्म हुआ है. क्लियर? तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर डिस्कस हुए.
प्लस शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस क्या होती है उससे ग्राफ, और लॉन्ग रन में एक ही कंडीशन होती है उसका ग्राफ। यहां आपका एक आंसर पूरा कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।